A very good morning to everyone. Today we will learn adjective. Let's start the session adjective. As we know that earlier we have read about the pronoun. So how we learn pronoun? Pro plus noun. Pro means place, noun means name. Same we have divided adjective into two parts, ad and active. Ad means advertisement, active means performance. A person who can perform is called a performer, or who acts. Clear? Who acts is known as active. Clear? So active means, adjective means what? Advertisement of performer. Advertisement of performer, or in other words we can say pros and cons of noun or pronoun. So in that behalf we can say the adjective means a word, or adjective can qualify noun or pronoun. A word which is qualify noun or pronoun. Many examples are there. So we have to learn about only the themes, the concept, how it works, how it helps to us in our competitive examination or academic examination. So let's start. This is your basic. I hope you understand the basic. Now we have to discuss about the place of adjective. Place of adjective in a sentence. So let's start. Sentence means what? The combination of subject, verb and object. The combination of subject, verb and object is called sentence. So where adjective will perform? Where is the adjective place? So in that answer we can say here noun will use, and here noun will use. Noun or pronoun? Noun or pronoun. So we can say the place of adjective in that terms we can say the first place of adjective is before noun. Before noun or pronoun. Clear? The place of adjective is before noun or pronoun, and second after verb. This is the two place of. Now for example, in that situation before noun we can say old book. Book is a noun and old is a adjective. Clear? But this is a now we have to take an example of a sentence, like in which we can say that old book is good for example, or we can say old man is coming. Clear? Old man is coming. In this situation old man, man is a noun, old is an adjective. Old man is coming. Clear? Now in the second example, after verb. After verb means what? We can say I am honest. I am honest. He is good. In these examples you can say am and is a verb, and honest and good is a adjective. So in the first place noun will use before, adjective will use before noun or pronoun, and in second after verb any adjective will use after verb. That is not necessary, not compulsory that adjective will always use before the noun. It is not compulsory. Adjective may use after verb also. Clear? Now you understand the meaning of adjective and you understand the place of adjective in a sentence. Let's see the some kinds of adjective. Clear? Before starting the kinds of adjective we have to know something more, such as when look at this structure, and I think you may write down these structure. It will help you a lot. How it will help you? Whenever you see any pronoun and just after that pronoun when noun will present,
it is sure that that pronoun will behave or that pronoun will perform as an adjective. Clear? Whenever you see in any sentence, if there is a pronoun and just after noun will there, so it is sure and certain that that pronoun will behave like an adjective. You may see like this. This car is mine. Here car is used as a noun, and this we have learned about this in our demonstrative pronoun. This is what demonstrative pronoun. Okay, clear? So now here this is a pronoun, afterwards car is a noun. Now compare that structure. Pronoun is there, noun is there. Now this pronoun is behave like an adjective. Which adjective? Demonstrative adjective. So if you learn this only rule, you may consider maximum kinds of adjective. Look at, first of all, note it down and remember this rule. Afterwards, when we learn the kinds of adjective, then you will understand this rule is very much important. So afterwards we will just start the kinds of adjective. So let's start the kinds. Here some kinds are there, kinds of adjective. These are the names of adjective. Now we will discuss the one by one all the adjectives, and thereafter we will discuss its rule, how to use. Basically in adjective chapter we have to learn about their words, how words are used in a exam, because in examination examiner will not ask you to give me the definition of these kinds or the words, which words are in that kinds. No, they will not ask question like this. They will give you the problem based on their words and their uses. So let's start. First, proper adjective. Proper adjective means what? An adjective which is created or which is formed with the help of proper noun. Clear? Proper noun. How? Such as India. India is a name of a country. When we will going to add an, this is become Indian. Clear? So proper adjective will perform or it will created with the help of प्रॉपर नाउन. क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोग को? जो भी हम लोग बातें कर रहे हैं अंडरस्टैंड, कंफर्टेबल है? मैं आपको मिक्स करके ऐसे बताऊंगा. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मीन्स व्हाट? दैट द नाउन और दैट एडजेक्टिव विच क्वालिफाई, विच गिव द क्वालिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ पर्सन. क्वालिटी, गुण, जिसको आप गुण देख सकते हो, गुड, बैड, काइंड, स्वीट, सिक एंड व्हाटएवर, सच एज आई एम टॉल, आई एम फैट. तो दीज आर द नाउन्स आर बेसिकली कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. क्लियर? आप देखना, इसे ध्यान रखना कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है ना, उसमें हम लोग बेसिकली जो यूज करते हैं ना, नाउन सिंगुलर होता है. यहाँ पे हम लोग गुड्स नहीं कह सकते हैं, गलत हो जाएगा. एक जो मैंने आपको इसके पहले रूल बताया था कि जितने भी काइंड्स आप देख लो ना, मैं आपको ये याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. जो एक रूल मैंने इसके आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि नाउन के अगर पहले कोई प्रोनाउन आ गया तो आया हुआ प्रोनाउन एडजेक्टिव होता है. उसी एक रूल पे आपका ये जितना भी है ना, सब आपको याद हो जाएगा. रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हमको वर्ड सीखना है. क्लियर है ना? देखो कैसे आप देखो, हमने क्या लिखा है यहाँ पे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. अब इस बात है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. ध्यान रखना, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. एक बार दिमाग में रूल के साथ साथ चलते रहो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या आएगा? सम, मच, लिटिल, ऑल और एनफ, इस तरह के वर्ड्स आएंगे. तो यहाँ पे क्वांटिटी और नंबर में डिफरेंस क्या है? दिमाग को कंसंट्रेट करो, एकदम याद होगा जाएगा. क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? इसके बाद हमेशा क्या आएगा आपका? ध्यान रखना, सिंगुलर आएगा. एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन्स आएंगे. ध्यान रखिएगा कि अगर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज हुआ है तो इसके बाद तो नाउन आएगा. एडजेक्टिव आने का मतलब कि नाउन आएगा. एडजेक्टिव है तो नाउन श्योर आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव का मतलब होता है टू एक्सप्रेस द क्वालिटी ऑफ अ नाउन. जब नाउन है ही नहीं तो क्वालिटी किसका? तो एडजेक्टिव आने का मतलब सेंटेंस में कि नाउन निश्चित रूप से आएगा, श्योर एंड सर्टेन है. और जब आपका एडजेक्टिव आया है तो नाउन आएगा. तो क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में नाउन कैसा आएगा आपका? सिंगुलर आएगा. एकदम दिमाग बना लीजिए, लिख डालिए. नेक्स्ट आते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर. देखिए
एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आपके दो नंबर होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब होता है ऐसा नाउन जो अनसर्टेन है, जिसको हम लोग ना जो क्या ना वो, अब जैसे हमने कहा इसमें कौन आएगा, फ्यू, सम, ऑल, मनी, ये सब आ जाएंगे। मिनी क्या है, काउंटलेस है। मेनी कह दिया कितने, नहीं गिन सकते हैं। सम कह दिया कितने, नंबर, एग्जैक्ट नंबर का पता नहीं है। लेकिन जब बात करते हैं डेफिनिट की तो इसका मतलब होता है एग्जैक्ट नंबर। अब इस डेफिनिट में तीन बनते हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। कार्डिनल नंबर कहते हैं जो काउंटिंग 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, गिनती इनको हम लोग कार्डिनल बोलते हैं। और ऑर्डिनल क्या होता है, जो ऑर्डर बेस होता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये आपके जो काउंटिंग में आएंगे इनको हम लोग ऑर्डिनल। जो ऑर्डर बेस हो ऑर्डिनल, जो काउंटिंग बेस हो वो कार्डिनल। और मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है, जो सिंगल, डबल, ट्रिपल ऐसे हम लोग बोलते हैं, ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव होता है। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि एक ही सेंटेंस में अगर आपका कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों को एक साथ यूज होना हो तो दिमाग में बना लीजिए, सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं ऑर्डिनल, तब यूज करते हैं हम लोग कार्डिनल। क्लियर, पहले ऑर्डर वाला आएगा फिर आपका काउंटिंग वाला आएगा। सपोज करो आप इसको, हमको एग्जाम में याद कैसे रखना है, तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारा एग्जाम में क्या हो गया ना, आप लोग हमेशा क्या बोलते हो, मेरी क्लास में मैं फर्स्ट आया, कोई नंबर तो बोलता नहीं कि मैं 500 में से 500 लेके आया, नहीं बोलता, क्या बोलता है, मैं फर्स्ट आया। तो पोजीशन पहले बताता है, ऑर्डर पहले बताता है। क्लियर, तो सेंटेंस में अगर ये दोनों एक साथ आए हो तो क्या करेंगे हम लोग, पहले ऑर्डिनल, उसके बाद हम लोग कार्डिनल का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं लोग डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव जो आपको इंडिकेट करता है, इसके बाद आपका दिस, दैट, दिस, दोस हमने पढ़ा था प्रोनाउन में। इसके बाद अगर नाउन आ गया तो क्या हो जाएगा, वो आपका ये एडजेक्टिव हो जाएगा। नाम तो वही रहेगा, जगह बदला तो नाम बदला। क्लियर, पोसेसिव जो पोजीशन है, ये प्रोनाउन में आप पढ़ चुके हैं। पोसेसिव, पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है। पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है, लेकिन पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन निश्चित रूप से आएगा। यही दोनों में अंतर है। पूछते हैं लोग व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव नाउन, आपका आंसर क्या होगा कि पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आएगा। क्लियर, ये आपके कुछ वर्ड्स हैं। ठीक है, फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखिए ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसकी भी क्वालिटी नोट करिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद आपका जो भी नाउन आएगा सिंगुलर आएगा। लिख लीजिए, अक्सर बोलने में लोग गलती कर बोलते हैं एवरी स्टूडेंट्स बोलते हैं, बोलते हैं ना एवरी स्टूडेंट्स बोलते हैं, जो कि एकदम आपका गलत होता है। एवरी स्टूडेंट होगा, सिंगुलर होगा। लिख लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद आपका जितने भी नाउन है, इसके बाद नाउन आना है, वो नाउन कैसा होगा, सिंगुलर नाउन का यूज किया जाएगा। क्लियर हो रहा है। अब देखिए इसमें ईच का यूज मैं आपको अगले वीडियो में जो प्रोनाउन, जो आपका एडजेक्टिव के रूल्स हैं, उसमें आपको बता दूंगा एक एक वर्ड का यूज कैसे कहां करते हैं। ठीक है, फिलहाल जान लेते हैं ईच का यूज करते हैं दो या दो से अधिक, एवरी का यूज दो से अधिक। ठीक है, आइदर का यूज दो के लिए पॉजिटिव सेंस, नाइदर का यूज नेगेटिव सेंस में करते हैं। क्लियर हो रहा है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं ऐसे एडजेक्टिव्स जो प्रश्न पूछने का है। शर्त वही है, नाउन आना चाहिए, जस्ट बात। ठीक है, देखो जैसे मैंने कहा व्हाट, अगर मैंने कहा विच, ये हुज। अब देखिए इसमें क्या, विच कहा, विच इज योर बुक, तो यहाँ पे विच के बाद इज आ गया, नाउन नहीं आया, ये प्रोनाउन हो गया। और विच बुक इज कह दिया, विच के बाद बुक आ गया, नाउन सडन आ गया, तो क्या हो गया आपका, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर। एम्फसाइजिंग का मतलब होता है जब हम किसी पे जोर डालते हैं। एम्फसाइजिंग मतलब क्या होता है, जोर डालना। मतलब कहा जाए मेरी कलम, दिस इज माई पेन, कोई जोर नहीं पड़ा, दिस इज माई ओन पेन, मेरा खुद का है, जोर डाला। तो ऐसे वेरी और ओन का यूज जब करते हैं तो ये एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव होता है। ठीक है। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जब इसके बाद हम लोग कोई एक ही है, बहुत आसान है, वर्ड सही है तो आपका बस एक्सप्लेनेशन से हो। इसके बाद एक ही आप एग्जांपल यू नोट कर लो, व्हाट एन आइडिया, व्हाट के बाद हमारा एन आइडिया एडजेक्टिव, नाउन आ गया तो हमारा ये एडजेक्टिव हो गया। तो ये हमारा आप एक बार नोट कर लो, पूरा मैं देख लो कैसे कैसे करते हैं। आप इसको और भी डिटेल में पढ़ लेना। जब आप इसको डिटेल में पढ़े रहोगे ना तो नेक्स्ट जब हम लोग रूल बात करेंगे और एक एक वर्ड की बात करें, देखो उसमें क्या है, लिटिल का यूज कहाँ करना है, फ्यू का यूज कहाँ करना है, फर्दर का यूज कहाँ करना है, फादर का यूज कहाँ करना है, मेनी और मच का यूज क्या होगा, डिग्रियां आएंगी। तो ये सारी चीजें हम लोग को भी पढ़ना बाकी है। तो हम लोग, आप लोग पहले इसको कंफर्म कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सारे रूल्स को भी पढ़ेंगे।
तो अगले वीडियो के लिए आप लोग लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जरूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा लें ताकि जब नया वीडियो आए तो आपको वेट नहीं करना पड़े, तुरंत आपका नोटिफिकेशन आ जाए और आपका चैप्टर ना छूटे। क्लियर? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।